Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Peace, blessings and salutations be upon my Prophet sallallahu alaihi wasallam, the man whose ranks have been raised by Allah subhanahu wa ta'ala, the flag bearer of the only truth and objective morality and justice, and the epitome of human character and the best and most perfect of all creations. Welcome to the Three Musketeers show. Today's video is going to be an academic response to the blasphemy done by this person and many such blasphemers in general. लेकिन क्या यही एक प्रॉब्लम है या ये एक ऐसी प्रॉब्लम का हिस्सा है जिससे हमें अंधेरे में रखा गया है? Although an emotional response from the people who love the Prophet sallallahu alaihi wasallam from the bottom of their hearts and more than their lives, it is inevitable. But in this situation, एक academic response compulsory है, क्योंकि ये इस्लाम की उन अहकाम और उस लेगेसी का हिस्सा है जिन अहकामों और लेगेसीज को भुलाने की हमें पूरी कोशिश की जा रही है. ऐसे अहकाम और एक ऐसी लेगेसी जो हमारे लिए एकेडमिक एंड एथिकल एक्सेलेंस की पीक तक पहुंचना और जुल्म के खिलाफ एक एक्टिव अप्रोच लेना हम पर फ़र्ज़ कर देती है. अब आइए देखते हैं कि इस ब्लास्फीमर ने जो गुस्ताखी की है वो किस बेसिस पर की है और ये आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग इन मेकिंग लॉजिकल फैलेसीज एंड स्ट्रॉन्ग इन फेलिंग टू अंडरस्टँड वन्स ओन प्रेमिसेस. या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे. एक मनुष्य 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो, यापेक्षा कोणता अत्याचार असू शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय वागतील? या मुस्लिम धर्मामध्ये स्त्रियांवर जे अत्याचार घडतात त्याला कारण आहे, अत्याचाराचं हेच कारण आहे की त्यांचे आदर्श अत्याचारी होते. त्यामध्ये जे विचारवंत मुस्लिम आहेत आणि जे मोठे मोठे 10-20 वर्ष मौलाना म्हणून जे राहिलेले आहेत, त्यांनी जेव्हा इस्लामचा कुराणाचा अतिशय सूक्ष्म अभ्यास केला आणि सूक्ष्म अभ्यास केल्याच्या नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की अन्य अत्याचाराशिवाय यामध्ये काहीच नाही. त्यांनी धर्म सोडून दिलेला आहे. पाकिस्तानमध्ये सुद्धा हा आकडा कोटीच्या पुढे गेलेला आहे. करोडो लोकांनी इस्लाम सोडला है पाकिस्तान में. अब तक आप ये आर्ग्यूमेंट समझ गए होंगे. इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करने से पहले हम आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझा दें और एक डिस्क्लेमर दे दें. डिस्क्लेमर ये है कि वी प्राउडली एम्ब्रेस एवरी सिंगल थिंग दैट माय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड and we consider it as objectively moral and we have nothing to be ashamed of. Second thing is, this argument that was made by this person, it was actually made in response to the alleged oppression or atrocities being done on Bangladeshi Hindus, and in response to this atrocity he made this argument very fallaciously and blamed the Muslims based on his moral criteria, which has objectively been subject to change. So to understand the refutation, we must also understand that this argument had a few presumptions. Presumption number 1, that age alone is the only objective criteria to decide whether getting married is legal or not. Presumption number 2, an age of marriage less than the age that he believes in to be legal, which we must assume that it is 18 as per the current Indian law, is mazallah not acceptable. Now, such an argument creates a few problems that every person with a similar background must address. These problems is actually the refutation to their arguments. Now let's look at the refutation. So the problem number 1 that these people will have to address is any person making such an argument must also condemn everyone who married at an age which is considered legal as per today's norms. Hence, every single person must also condemn the Constitution of India before 1978 and everyone writing and believing in the Constitution of India before 1978 when there was no standard legal age for getting married. In fact, in 1929 when the act came out to curb child marriage, the legal age of marriage was increased to 14 years of age. इसका मतलब ये हुआ कि 1929 से पहले लीगल एज ऑफ गेटिंग मैरिड वॉज इवन लेस दैन 14 ईयर्स. इसको और थोड़ा पीछे लेकर जाएं तो 100 या 125 साल पहले की अगर बात करें तो जिन वेस्टर्न कॉलोनियल मास्टर्स से ये मॉरल क्राइटेरिया लोगों ने लिया है, उन्हीं लोगों के यहाँ द लीगल एज ऑफ गेटिंग मैरिड वॉज 7 ईयर्स. सो any person making such a claim must condemn every single person who believed in such criteria. Problem number 1. Problem number 2. Have the same level of problem with the very scriptures which you claim to follow. In fact, if you hold on to this type of argument, this type of flawed argument,
You must accept the argument made by anyone else if they call India the rape capital of the world or the country with highest amount of casteism or child marriage simply because the majority is Hindu and they claim to follow these scriptures. Problem number 3 is that you have to answer to your followers as to why you are taking your moral criteria from a Western compass when you are expected to follow your scriptures, the very scriptures whose authenticity is a topic much debated upon. So these were our arguments for the academic refutation of this person and many such blasphemers like these. And why the very criteria, the very Western criteria that he has based his argument on, why is it incorrect? To understand this, please watch this video. अब आते हैं हमारी वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या यही एक प्रॉब्लम है या फिर ये एक ऐसी प्रॉब्लम का हिस्सा है जिसे हमें समझने से अंधेरे में रखा गया है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें कुछ सवाल आपके सामने रखेंगे और उनके जवाब हम आपको अगली वीडियो में देंगे इंशाअल्लाह, जहां पर आपको गौर व फिक्र करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, आखिर क्यों ऐसा होता है कि पिछले सालों में एक ऐसा पैटर्न देखा गया है कि जिस स्टेट के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस होने वाला होता है या वहाँ पर जैसे इलेक्शंस होने वाले होते हैं, उसके कुछ महीने पहले कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि रूलिंग पार्टी को मौका मिल जाता है इस्लाम को एक बैड लाइट में डालने का। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर इलेक्शन CAA प्रोटेस्ट होते हैं और प्रोटेस्ट के अंदर राइट्स हो जाती है, जिसके बाद रूलिंग पार्टी मुसलमानों का एंटी नेशनल बोलना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल नंबर 2, या फिर द कंट्रोवर्शियल नेचर ऑफ द नुपुर शर्मा केस, जिसके 1 महीने के बाद कन्हैया लाल का मर्डर हो जाता है और उसको मर्डर करने के लिए वो मर्डरर्स एक इस्लामिक जस्टिफिकेशन देते हैं, जिसके बाद अगेन पार्टीज़ को मौका मिल जाता है इस्लाम को एक बैड लाइट में पोर्ट्रे करने का, ये लोगों को बताने का कि इस्लाम की वजह से लोगों को खतरा है और द रूलिंग पार्टी इज़ द ओनली मसीहा फॉर द हिंदूज़। और लेटेस्ट देखें तो ये वाला केस जहाँ पर सबसे पहले ब्लास्फेमी होती है, उसके बाद स्टेट का CM ओपनली ब्लास्फेमी को सपोर्ट करता है, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ओपनली कम्यूनल हेट्रेड फैलाने वाली स्पीचेस कहते हैं, उसके बाद एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कहती है, जिसने इससे पहले कभी भी हुई ब्लास्फेमीज़ पर एक ऐसा स्टेप नहीं लिया जो उसने इस बार लिया, एक इतनी बड़ी रैली अल्हम्दुलिल्लाह निकालती है। और बहैसियत मुसलमान हम उनकी नीयत पर तो शक नहीं करते, लेकिन इतनी बड़ी रैली निकालने के बाद भी कोई मेजर ऑब्जेक्टिव अचीव होता हुआ नहीं दिखता। इनफैक्ट कंप्लेंट्स ये आती है कि उस रैली में गए हुए लोग जो गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गए थे, वो ये कहते हैं कि ब्लास्फीमर्स को पर्सनल अटैक्स और अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव की एडवर्टीज़मेंट के अलावा उन्हें कुछ देखने नहीं मिलता। हमारे उलमाए किराम और अकाबिरीन इनडायरेक्टली मुखातिब होकर ये कहते हैं कि हर किसी की बुलाई हुई रैलीज़ में हमें शामिल नहीं होना है। ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंटली इलेक्शन के 2 महीने पहले क्यों हो रही? और सबसे एविडेंट एग्जांपल, लोकसभा इलेक्शंस के कुछ महीनों पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का इनडायरेक्टली मुसलमानों को मुखातिब होकर उन्हें ज़्यादा बच्चों वाला कहना या ये कहना कि ऑपोजिशन हिंदुओं के मंगलसूत्र और प्रॉपर्टीज़ लेकर मुसलमानों को दे देगी, ये सारी चीज़ें इलेक्शन से कुछ महीने पहले होना सिर्फ महज एक इत्तेफाक नहीं। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स, और अब अगली वीडियो में जाने से पहले हम आपको कुछ सवालात के साथ छोड़ेंगे जिसके जवाब और एनालिसिस हम अगली वीडियो में देंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो व्हाट इज़ रिजल्टिंग इन द फैक्ट कि जस्ट बिफोर एन इलेक्शन हेट्रेड को फैलाने लायक और कम्यूनल एंगल को इंसाइट करने वाली स्पीचेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर। आखिर क्यों ऐसा देखा गया है कि अगर 32 केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग हुई है, उसमें से 22 मॉब लिंचिंग्स होती है बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के अंदर, और ये जो करंट ब्लास्फेमी केस है, क्या ये हमें एक ऐसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है जिसके बारे में सच में बात की जानी चाहिए? ये सारे सवाल और इनके जवाब हम नहीं तलब करते किसी एक इंसान से, किसी एक मिनिस्टर से, एक रूलिंग पार्टी से या किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी से। इनफैक्ट ये सारे सवाल हम करते हैं एक ऐसी एंटिटी से जिस पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाने दिया गया। क्या है वो एंटिटी? क्या है इन सवालों के जवाबात और क्या है वो वजह जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।